السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ تنول کے نوائی علاقہ ڈھوک عباسی میں طوفانی ہواؤں نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ گھر کی دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ تنول میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ نوائی علاقہ ڈھوک عباسی میں تیز ہواؤں کے سبب دیوار ہمسائے کی چھت پر گر گئی۔ چھت پر سوئے 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب کوٹچھٹا میں بھی طوفانی آندھی نے تباہی مچا دی۔ بجلی کے پول، مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ گھنٹوں بجلی غائب ہونے کے باعث گھریلو صارفین سمیت تاجر برادری بھی پریشان ہے۔ گئی آ گئی پھر گئی، یہ وہ صدائیں ہیں جو آج کل ہر گلی محلے میں سنی جا سکتی ہیں۔ شدید گرمی، سانس بھی لینا محال۔ دن کو سورج کی تپش نے جھلسایا تو رات کو وابڈا نے ستایا۔ عین آنکھ لگتے ہی بجلی غائب، کوئی تو روک لو۔ درجہ حرارت 45 ڈگری اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں ہو سکا ہے۔ شدید گرمی میں آتی جاتی بجلی سے لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بجلی کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جس کے باعث شہری ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کسی صورت نجات ملتی دکھائی نہیں دے رہی۔ شہروں میں گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے روزانہ 6 سے 8 اور دیہاتوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی معطل کی جا رہی ہے۔ تعلیمی ادارے کھل جانے کے باعث طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بندش نے گھریلو صارفین کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری شعبے سے وابستہ افراد کو بھی معاشی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث طویل لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شہری بے بسی کی تصویر بن گئے۔ ہر 1 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ سے کئی علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ خانوال کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گرمی کی شدت میں اچانک اضافے کے بعد بجلی کی طلب بڑھ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔ رانا طاہر کی رپورٹ۔ کئی روز سے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے، جس کے باعث مختلف شہری اور دیہی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں سخت گرمی کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث کاروبار اور نظام زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ایسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے کاروبار پہلے ہی کورونا کی وجہ سے ڈسٹرب تھے، اب ہمیں اور مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جبکہ مہر شاہ فیڈر سے منسلک آبادیوں خصوصاً 168 NR کے علاقہ مکین بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ گرمی میں بہت اضافہ ہو گیا اور ساتھ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا، بہت پریشان ہے، اتنی گرمی ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ والے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور واپڈا سے اپیل ہے پلیز اس کا کوئی حل نکالیں۔ ان علاقوں کے طالب علموں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ہماری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ گرمی کی وجہ سے کلاسز میں بیٹھا نہیں جاتا، پیپر ہمارے نزدیک ہیں، پڑھائی ہو نہیں، لوڈ شیڈنگ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ بجلی نہیں ہوتی، ہمیں کلاسز میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد طاہر، بیورو چیف سچ ٹی وی خانوال۔ چمن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نظام زندگی شدید متاثر ہو گئی۔ شہر میں پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی جس کے باعث شہری پریشان ہیں۔ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ شدید گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہری کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے باعث جینا دوبھر ہو گیا ہے، جائیں تو جائیں کہاں۔ بجلی کی آنکھ مچھوری جو ہے وہ چمن میں جاری ہے اور انتہائی گرمی کی صورتحال کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص جہاں کمرشل ایریا ہے، سٹی ایریا ہے، یہاں تو بالکل لوگ رات کے وقت نہیں سو سکتے ہیں۔ بجلی بھی غائب ہے اور آنے کی صورت میں بہت کمزور ہے۔ اطراف میں بالکل بجلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ساتھ کے ساتھ میں غریب لوگ جو ہے مزدور کار لوگ 200-300 روپے داڑھی ہے اور ٹینکر مافیا اس وقت 3000 3,500 روپے پہ پر ٹینکی فروخت کر رہا ہے۔ شہری دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہے، جبکہ ٹینکر مافیا کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے جینا محال کر رکھا ہے، اب تو پانی بھی پیسوں کے عوض لینے پر مجبور ہے۔ ایک تو بجلی کا یہ حال ہے، جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی نہیں ہے، لیکن ہمیں پانی کا وہ پینے کا پانی جو ہے نا وہ
दस्तयाब नहीं है। आप देख सकते हो ये टैंकर माफिया इन लोगों ने कितना जुल्म शुरू किया हुआ है। 500-600 का टैंकर तकरीबन आज हम 2500-2000 रुपए का ले रहे हैं। चमन में आजकल पानी का सख्त किल्लत है, इसकी वजह से 500-600 के बजाय आजकल टैंकी की कीमत 3000 तक पहुंच गया। आवाम सख्त परेशान है, इसकी वजह से सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पर सख्त एक्शन ले जाए। शहरियों ने आला हुकाम से बिजली की बिला तातुल फराहमी और पानी किल्लत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नहरी पानी की किल्लत संगीन मसला बन गई। सिंध के शहर विगन की राइस कैनाल से निकलने वाली छोटी बड़ी नहरें खुश्क हो गई हैं। ज़रई जमीनें बंजर हो गई। बरवक्त चावल की काश्त न होने पर काश्तकार परेशान हैं। विगन में नहरी पानी की शदीद किल्लत के बायस जमीनें बंजर हो गई। हर साल नहरों को पानी से भर दिया जाता था, लेकिन इस बार वक्त पर पानी न मिलने से लाखों एकड़ पर चावल की काश्त न हो सकी, जिसके बायस काश्तकारों को करोड़ों के नुकसान का खदशा है। तक हमने बीज की पोखाई भी नहीं की है। नहरों में पानी नहीं है, ये नहरें सारी खाली पड़ी हैं, जमीनें ऐसे ही खाली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं किया गया। हम आला अख्तियारीन को ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो काश्तकार होते हैं वो बहुत परेशान है। इस इलाके में चावल का बीज होता है 10-20 तारीख जून तक ये पानी आ जाता है, मई तक। अभी तक जून का 15 तारीख होने वाला है, तभी अभी तक ये पानी नहीं आया, तो काश्तकार बहुत परेशान है। नहरों में पानी की किल्लत के बायस मवेशियों का चारा भी खुश्क हो गया। दरिया सिंध से निकलने वाला राइस कनाल फीडर जो कि जिले भर की दर्जनों छोटी बड़ी नहरों को पानी फराहम करता है, वो भी खुश्क हो गया। अभी तक 2 माह हो गए हैं हमारे नहरे में पानी नहीं आया है। पानी न आने की वजह से हमारे किसान हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक जो चावल का बीज है उसकी भी पोखाई हम नहीं कर सके। हालांकि इसका मतलब यही होता है कि इस साल बड़ा जैसे नुकसान का खदशा है और बड़ी तबाही के मंजर जो है हमें दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे 12 महीने का जो काम है, जो फसल है, वो अभी तक हम खुदाई नहीं कर सके हैं। इसलिए खुदारा हम अपील करते हैं आला हुकाम से और वफाकी गवर्नमेंट से तो जल्द हमारी नहरों में पानी दे के हमारे किसानों की बेचैनी को खत्म किया जाए। काश्तकार कहते हैं 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन नहरों में पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से पानी की जल्द फराहमी का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध भर में पानी की किल्लत का मसला हल न हुआ। टंडोलयार में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। सिंध भर की तरह टंडोलयार में भी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। काश्तकार तंजीमों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी कार पर मकामी क़यादत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत पीपल्स पार्टी के जिले सदर रुकन कौमी असम्बली जुल्फकार सत्तार बचानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाबख्श थेबो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जहीर पिताफी, आफ्ताब जोनेजो, रमजान मरी, फरहान पिताफी और दीगर कर रहे थे। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वफाक हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा, हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। जो हमारे साथ सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं कह रहा हूँ भाई ये हमारे लिए तो नहीं, ये एक इज्तिमाई काम है। उसी के हिसाब से ये था प्रोटेस्ट और ये हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हम कहते हैं कि हमारा पानी का हिस्सा जो है इन्होंने गजब किया है, वो वापस दे। पंजाब वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी जो पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि सिंध की कश्मीर के मनाजर पेश करने वाली सरजमीन को सहराए थर जैसा करने की साजिश की जा रही है। ये हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम अपने हिस्से का पानी लेकर दम लेंगे। होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के बायस मेन शाहरा हैदराबाद मीरकास रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलयार। चिन्योट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत खस्ताहाल हो गई। मुलाजमीन के सर पर मौत के साए मंडलाने लगे। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट का वाहिद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हुकूमती तवज्जो का मुंतजर दिखाई देने लगा। पोस्ट ऑफिस की इमारत मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी, जबकि छतों को दरारें पड़ने से सीमेंट के टुकड़े मुलाजमीन के सिरों पर गिरते हैं। पोस्ट ऑफिस चिन्योट में काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन पर मौत के साए मंडलाने लगे। मुतअद्दिद बार आला हकाम को दरखास्तें दी, लेकिन हुकूमत और ज़िली इंतजामिया न तो पोस्ट ऑफिस की इमारत की तमीर व मुरम्मत कर रही है और न ही दफ्तरी अमूर के लिए पोस्ट ऑफिस को किसी दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल
کر رہی ہے۔ پوسٹ آفس کے ملازمین اور شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر مواصلات سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ آفس کی عمارت کی حالت کو بہتر کرے تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیرو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ محکمہ شاہراہ کی غفلت حد پار کر گئی۔ ٹانک بازار کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ 2 سال سے تعمیراتی فنڈز کی منظوری کے باوجود تاحال سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ عوامی منتخب نمائندے ووٹ لے کر غائب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے شہر ٹانک کی حالت نہ بدلی۔ 2 سال قبل ٹانک کی مین شاہراہ کے لیے 22 کروڑ کا تعمیراتی فنڈ منظور ہوا۔ باقی تمام اضلاع میں اس فنڈ سے کام مکمل ہو چکے، لیکن ایک واحد ضلع ٹانک ہے جہاں کوئی تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا۔ کئی دہائیوں سے مین بازار کی سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ حادثات معمول بن گئے ہیں۔ منٹو کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ٹھیکیدار اسٹے آرڈر لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تنول میں محکمہ NHA کی غفلت کے باعث لاکھوں کے بجائے جانے والے انڈر پاس اور برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ شہر افسر۔ ترنول کے نوائی علاقہ 26 نمبر چنگی مین سٹاپ پر قائم انڈر پاس اور ترنول چوک پر بنائے جانے والا برج ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جس سے عوام کا انڈر پاس سے گزرنا محال ہے۔ محکمہ NHA اور ان کی انتظامیہ کی غفلت کے باعث ناقص مٹیریل کی وجہ سے آندھی اور طوفان سے دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پشاور روڈ پر NHA کی نگرانی میں بنائے گئے انڈر پاس صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے غلاظت اور گندگی کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ انڈر پاس کی جو مین چھت ہے وہ 2 دفعہ بنائی گئے ہے اور وہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے وہ 2 دفعہ گرا ہے، تو تیسری دفعہ بنایا۔ تیسری دفعہ کل رات کو جو آندھی طوفان آیا، چھوٹی سی آندھی طوفان تھی، اس کی وجہ سے وہ کل گرا ہے اور اللہ پاک نے کوئی بڑے حادثے سے بچا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور یہ انڈر پاس ہم کہتے ہیں کہ NHA والوں کو یہ ایک طریقے سے بنایا جائے اور اس کی ریگولر صفائی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں لائٹ سائٹ لگائی جائے، بالکل اس کو پراپر جس طرح پشاور میں ہے اسی طرح پراپر اس کو صفائی کی جائے۔ انتظامیہ کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ترنول چوک پر بنائے جانے والا برج بھی خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ NHA کے افسران اور انتظامیہ دفاتر میں خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ انڈر پاس کی دیواریں اور چھت گرنے سے کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عوامی گزر گئے ہیں۔ متعلقہ انتظامیہ کی غفلت سے بڑے نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ NHA حکام کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں کے باسیوں کا یہی مطالبہ ہے کہ انڈر پاس کی تمام تر سہولیات NHA حکام مہیا کریں تاکہ یہاں کے گزرنے والے باسی بآسانی سے اپنا گزر بسر کر سکیں۔ کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ حافظ شیر افضل، سچ نیوز، ترنول۔ سنگلہ حل میں پنجاب حکومت کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پہ ناکام ہو گیا۔ پورے شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن سے موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ندیم اختر بٹ کی رپورٹ۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹھس ہو گیا۔ پورے شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے مختلف موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مقامی میونسپل کمیٹی میں صفائی پر مامور سینٹری ورکرز کی تعداد ناکافی ہے۔ سانگلہ حل کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ سینٹری ورکرز جو صفائی ستھرائی پر مامور ہیں ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ آدھے سے زائد سینٹری ورکرز بھرتی ہونے والے مسلمان ہیں جو گھروں میں بیٹھے تنخواہیں اڑا رہے ہیں اور سرکاری خزانے کو نقصان تو پہنچا ہی رہے ہیں، البتہ شہر بھر کی گندگی کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور DCO ننکانہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے شہر میں تقریباً کوئی 55 یا 50 ورکر سینٹری ورکر ہیں۔ AC صاحب یہاں پہ ہیں، CO صاحب یہاں پہ ہیں، لیکن کسی احکام کی گندگی پہ نظر نہیں پڑتی۔ محلوں میں، گلیوں میں، چراہوں میں، رستوں میں، مین شاہراہوں میں سارا گند پڑا ہوا ہے۔ کہاں کہیں بھی شہر میں کوئی صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جگہ جگہ سڑکوں پہ، محلوں میں، گلیوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ AC صاحب اور CO صاحب بھی شہر کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے شاید انہیں یہ گندگی کے ڈھیر نظر نہیں آتے۔ سانگلہ کی عوام کا کہنا ہے کہ خدمت آپ کی دہلیز پر جو پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھیجا ہے ان پر ہم مطمئن نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہی، دھنوٹ میں صبر نظام تباہ ہو گیا۔ اہل علاقہ کی آمد و رفت محال ہو گئی۔ شاہد بلال کی رپورٹ۔ دھنوٹ میں سیوریج نظام تباہ ہو گیا۔ شہر کی تمام گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئی۔
علاقہ مکینوں اور سکول کے بچوں کو گزرنے میں شدید مشکلات درپیش ہے۔ سکول کے بچوں اور اہل علاقہ نے انتظامیہ اور سیاستدانوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال سے سیوریج سسٹم ناکارہ ہے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، گلیوں میں گندا پانی ہونے سے مارکیٹیں بند، کاروبار تباہ ہو چکے، گلیوں سے گزرتے ہوئے کئی مرتبہ بچے اور بزرگ گندے پانی میں گر جاتے ہیں۔ بڑی پریشانی، ہم ڈیلی یہاں سے گزرتے ہیں، ہمارے بیگ گر جاتے ہیں، ہم خود گر جاتے ہیں، اور جو بچے ہیں رش کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دھکا دے دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ 3 سے 4 سال ہو گئے، ہماری گلی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میری گزارش ہے ڈی سی لودھرا صاحب سے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرایا جائے۔ ہم نے کئی دفعہ احتجاج کیا ہے، روڈ بلاک کرائے ہیں، اور ہماری انتظامیہ جو ٹاؤن کمیٹی دھنوٹ ہے وہ ہمارے کوئی ہیلپ نہیں کر رہی۔ انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کئی مرتبہ درخواستیں اور احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا کہنا تھا کہ دھنوٹ کے سیوریج کے لیے بڑے فنڈ کی ضرورت ہے، لیکن آج سے مشینری لگا دی ہے، جلد اس ایشو کو حل کر لیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد بلال، سچ نیوز، دھنوٹ۔ کوہاٹ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، قصابوں نے سرکاری نرخنامے مسترد کر دیے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں بیف 600 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ علی بنگش کی رپورٹ۔ کوہاٹ میں کسائیوں نے سرکاری نرخنامے کو مسترد کر دیا، موٹا گوشت کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ گوشت کا سرکاری نرخ 400 سے 450 روپے فی کلو ریٹ مقرر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں موٹا گوشت 500 سے 600 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جس کے باعث عام آدمی کے لیے گوشت خریدنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہریوں نے مایوسی کا اظہار کیا، تو دوسری جانب کسائیوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈیوں میں جانور مہنگے داموں مل رہے ہیں۔ منڈی سے مال بہت مہنگے مل رہا ہے، ہم ادھر مہنگے دام میں خرید بیچ نہیں سکتے۔ ابھی عوام بھی ہم سے اعتراض کرتا ہے، ذرا حکومت بھی اعتراض کرتی ہے، ہم جائیں تو کس طرف جائیں، سمجھیں۔ مال ہمیں ادھر سے سستا ملے گا تو ہم بھی ادھر سستا بیچتے ہیں، ادھر مال مہنگا ملتا ہے تو ادھر بھی ہم مہنگا بیچتے ہیں، تو حکومت پکڑ لیتی ہے، پھر گاہک بھی اعتراض کرتا ہے، چیز بھی اچھی نہیں بیچ سکتے۔ مہنگے داموں جانور خرید کر سستا گوشت کیسے بیچیں؟ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ جہلم کی تحصیل دینا کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا ناپید ہو گئے، جس کے باعث شہری اوپن مارکیٹ سے چینی اور آٹا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ذوالقرنین شاہ کی رپورٹ۔ تحصیل دینا کے تمام یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹا اور چینی نایاب ہو گئے ہیں، جس کے باعث عوام اوپن مارکیٹ سے چینی اور آٹا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر خریداری کی غرض سے آئے ہوئے شہریوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہے اس پہ کم از کم 15 دن سے نہ تو چینی آ رہی ہے، نہ آٹا آ رہا ہے اور نہ ہی گھی آ رہا ہے۔ غریب لوگ سارا دن گرمی میں جناب علی یہاں چکر پہ چکر لگاتے ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی ہفتہ پہلے آئے سو چینی لینے واسطے، چینی نہیں ملی، ہوں بھی ہفتے بعد آئے چینی نہیں ملی، آٹا بھی نہیں مل رہا، یہ لہٰذا سہولت موجود ہونی چاہیے ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی عدم دستیابی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں 1 کلو چینی 110 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ آٹے کے بھی منمانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ تحصیل دینا کی عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی اور سستا آٹا مہیا کیا جائے تاکہ ہم یہ خرید کر مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ شاہکوٹ میں کسان اور تاجر برادری بجٹ 2021 سن کر خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیے لیاقت بھٹی کی رپورٹ۔ پنجاب کی جانب سے پیش کیا جانے والا بجٹ 2021 میں جہاں ملازمین تنخواہیں بڑھنے پر خوش ہیں، وہیں پر تاجر برادری اور عام عوام بھی خوشی کا اظہار کچھ یوں کر رہے ہیں۔ 2021 جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ بہت اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو تاجروں کے لیے انہوں نے جو بینک سے پیسے نکلوانے پہ ٹیکس تھا وہ جو ختم کیا ہے وہ بہت قابل دید ہے، اس میں تاجر بہت خوش ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو گاڑیاں ان پہ ٹیکس ختم کیا گیا ہے کچھ، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے مزدور ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ قابل دید ہے۔ زمینداروں کے لیے کتنا ریلیف اس گورنمنٹ نے دیا ہے۔ یہ گندم کا ریٹ جو ہے یہ 400 روپے، اس میں ابھی دیکھیں یہ زمینداروں کے پاس پیسے آئے ہیں، ابھی خوشحال ہیں، گاؤں والے لوگ خوشحال ہیں، دعائیں دیتے ہیں اس گورنمنٹ کو۔ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں دیکھیں گورنمنٹ نے جو 850 سی سی سے جتنی بھی نیچے گاڑیوں ان پہ سارے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں۔ بجٹ میں کسانوں کو ریلیف دے کر حکومت نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں بھی کمی لائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت بٹی، سچ نیوز، شاہکوٹ۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के मजीद 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,41,170 हो गई। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा तादाद सूबा पंजाब में 3,43,926, सिंध में 3,27,604, खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,877, बलूचिस्तान में 26,201 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद 82,099, गिलगित बल्तिस्तान में 5,707 केसेस, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 19,756 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 56 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,689 हो गई। पंजाब में 10,501, सिंध में 5,236, खैबर पख्तूनख्वा में 4,216, इस्लामाबाद में 771, बलूचिस्तान में 294, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आजाद कश्मीर में 563 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,38,18,036 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36,368 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,77,191 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,760 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ की बस्ती मोचीवाला को पुरस्रार बीमारी ने घेर लिया। 10 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। 16 लागिरपन के बाद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। माजूर अफराद ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बीमारी की तशखीस और इलाज मुआलजे के इकदाम उठाने का मुतालबा किया। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका खानगढ़ की बस्ती मोचीवाला में पुरस्रार बीमारी ने डेरे जमा लिए हैं। पुरस्रार बीमारी का शिकार अफराद ने बताया कि उनके 10 अफराद इस बीमारी का शिकार होकर मौत को गले लगा चुके हैं, जबकि अभी भी खवातीन और बच्चों समेत उनके 16 अफराद लागरपन और माजूरी का शिकार होकर बिस्तर मर्ग पर पड़े मौत का इंतजार कर रहे हैं। माजूर अफराद ने बताया कि बचपन से ही ये बीमारी उन्हें अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है। 25 साल की उम्र को पहुंचते ही उनके आज़ा काम करना छोड़ जाते हैं और वो सूखेपन, लागरपन और माजूरी का शिकार होकर काम काज और चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। माजूर अफराद ने बताया कि अरसा 30 साल से इस पुरस्रार बीमारी ने उनकी बस्ती में पंजे गाड़ रखे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से आज तक इस बीमारी के तदारुक, तशखीस और इलाज मुआवजा के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए। गवर्नमेंट जरा असां अपील करें उन्हें को सारा कोई इलाज करें, कोई सा को तावन करें। असां खटरे दे सम गए उठन बन दे कहीं नहीं, साडे काम कार दे असां कहीं नहीं, ना असां खाना खा सकते हैं, लोग सा को खाना खवेने और जरे 35 साल की उम्र होवे साडे अंदरों गिजा नहीं मिली, असां हौले हौले कमजोर थी फौत थी वेने। साडे कई बंदे ही तकलीफ नाल मेहरबानी हुकूमत साडे नाल कोई तावन करे। इन माजूर अफराद ने मुखैर हजरात, NGOs, महकमा हेल्थ मुजफ्फरगढ़ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि यहाँ पर महकमा हेल्थ की टीमें भेजकर इनकी बीमारी की तशखीस के बाद इलाज मुआवजा के लिए इकदाम उठाए जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी में टाइफाइड से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती की आगाही मुहिम के सिलसिले में DHQ अस्पताल विहाड़ी के रिसोर्स सेंटर में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। टाइफाइड हिफाजती का इफ्तिताह CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल ने फीता काट कर किया। सेमिनार में डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल्स और हेल्थ वर्कर की कसीर तादाद मौजूद थी। CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल ने कहा, ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि हमारे जो बच्चे इस एज ग्रुप के 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चे जो कि हम कवर करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो है ये वो एज ग्रुप है जो कि वल्नरेबल है, जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर होता है टाइफाइड बीमारी से। कि इस वक्त पूरे मुल्क में टाइफाइड बुखार फैल रहा है और इससे बचने का वह जरिया हिफाजती टीकों का लगवाना है। शहरी इलाकों में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे। सेमिनार के आखिर में हिफाजती टीकों का शऊर उजागर करने के लिए CEO हेल्थ ने वर्कर के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम, लक, सच न्यूज बिहाड़ी। शदीद गर्मी के सताए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ाला बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर और नवाही इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिल फरेब बना दिया। काहना, कसूर, नारोवाल, जफरवाल, ढस्का, मुरीदके और गिरदोनवा में भी मींह बरसा। गोजरा, चिन्योट, शाहकोट, सांगला हिल, कायदाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कुनिया, चश्मा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मजीद बादल बरसने की नवीद सुनाई है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ाराबारी की भी तवक्को, जबकि मुल्क के दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कांटे से मछली का शिकार एक मुशक्कत तलब और सब्र आजमा काम है। वजीराबाद में मौजूद झीलों और तालाबों के गिर्द मछलियां पकड़ने के शौकीन अफराद पानी में कांटा डालकर मछली काबू में आने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। राशिद महमूद की रिपोर्ट। कांटे या कुंडी से मछली का शिकार एक मुशक्कत तलब और सब्र आजमा काम है। अमूमन छुट्टी के रोज मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद आबी झीलों और तालाबों के गिर्द मछलियां पकड़ने के शौकीन हजरात पानी में कांटा डालकर मछली काबू आने का इंतजार करते दिखाई देते हैं। इस काम के लिए मछली पकड़ने वाले मखसूस कांटे के आगे मछलियों के लिए चारा के लिए केंचुए, आटा, गोश्त, मछली के पूंग और दीगर ऐसी ही अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। चारा लगी कुंडी को पानी में डालकर मछली के कांटे में फंसने का इंतजार किया जाता है। यूं ही मछली कांटे में लगी इमदादी लकड़ी पानी में डूबने लगती है। मतलब ये कि शिकार कुंडी में फंस चुका है। शिकारी फौरन कुंडी को खींचकर अपना शिकार पानी से बाहर निकाल लेता है। मछली के शिकारी हजरात ने बताया कि बाकायदा इजाजत से हुकूमत के नीलामशुदा पानियों पर शिकार करते हैं। हमारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट को हम फीस देते हैं सालाना 300 रुपया। तो जो है कहीं भी नीलामशुदा पानी से हम शिकार खेल सकते हैं। आज यहाँ तो मछलियाँ पकड़ने आते हैं अक्सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है और आज तो मौसम बड़ा अच्छा है। सिर्फ शौक की खातिर ये मशगला रखा हुआ है। हम छुट्टी के दिन आते हैं शिकार खेलने के लिए, आउटिंग के लिए, टाइम पास के लिए। तो शिकार खेलने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है जो महकमा फिशरीज के थ्रू बनता है। शिकार की हुई मछली का अपना ही मजा होता है। मौसम बेहतर होने पर मछलियां पकड़ने के शौकीन हजरात इन पानियों का रुख करते हैं। वजीराबाद में गेमन झील के करीब, गुजरात और वजीराबाद के करीबी इलाकों के शिकारियों की बड़ी तादाद अक्सर मौजूद रहती है। माहीगीरी एक पेशा है और कांटे से मछली पकड़ना इसे बतौर मशगला इख्तियार किया जाता है। छोटे पैमाने पर लोग मछलियां पकड़ते और छुट्टी के रोज पानियों के मुख्तलिफ मकामात पर मछलियां पकड़ने वालों का रश देखने में नजर आता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज, वजीराबाद। लोड शेडिंग और शदीद गर्मी की सताए शहरियों ने लोरदीर के तफरीही और सयाती मकामात का रुख कर लिया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। ये मुनाजिर दरिया पंचकोड़ा के किनारे अलाकाबाद की है, जहाँ शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आए हुए हैं और दरिया के हसीन और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रही है। उससे क्लिप्स वगैरह ली थी तो वो जब उसने बेची तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था, तो हमने कहा क्यों ना हम ना जाए वहाँ पे ब्यूटी एंजॉय करें। तो टेंशंस को तो डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीव करना है तो यहाँ आना चाहिए आप लोग को। गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पार्क में आया हूँ। यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया और झूलों से भी खूब लुत्फानंदोज है और दरिया पंचकोड़ा के जहाँ बस्ता हुआ उसे खूब एंजॉय किया। इन दिनों लोअरदीर के तफरीही और सियाती मकामात में खूब हुजूम होता है और आई हुई अफराद मुख्तलिफ पकवानों, जोड़ों, हसीन मकामात से खूब महफूज होते हैं। लोअरदीर में शदीद गर्मी को कम करने के लिए सयाहों ने लोअरदीर का रुख कर लिया है। यहाँ पर सयाहती मकामातों और दरिया पंचकोड़ा के यखपस्ता हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअरदीर। सूरज का पारा हाई, हारूनाबाद और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ता जा रहा है वैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही ठंडे ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। कहीं लीमू पानी तो कहीं लस्सी पी जा रही है। गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल राहत और ठंडक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। गर्मी की शिद्दत के साथ ही हारूनाबाद शहर की अहम शाहराहों और बाजारों में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। फालसा, आड़ू और इमली आलू बुखारे के साथ साथ पुदीना और खीरे का शरबत गर्मी का तोड़ समझा जाता है। हारूनाबाद में जा बजा इन मशरूबात के ठेले सज गए हैं, जहां बूढ़े, जवान और बच्चे इन मशरूबात से ठंडक और राहत हासिल करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में इन मशरूबात को पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है।
दूसरी तरफ बाजारी ठेलों पर सफाई के नाक़िस इंतजामात के बाइस बच्चे और बूढ़े अफराद अक्सर बाजारी मशरूबात पीकर बीमार भी हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर हजरात घर में साफ सुथरे बने हुए मशरूबात का इस्तेमाल का मशवरा देते हैं, जो कि सस्ते और सेहत बख्श भी होते हैं। घर के बने मशरूबात केमिकल से भी पाक होते हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। चकवाल टेक रावलपिंडी डिवीजन और खिता पोटोहार अंगूर की काश्त के लिए मौजू है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। खिते पोटोहार में अंगूर की फसल पककर तैयार होगी। ज़री माहिरीन की तरफ से खिते पोटोहार को अंगूर की काश्त के लिए मौजू करार देने और इस खिते के लिए मौजू इक़साम की दरियाफ्त के बाद काश्तकारों में अंगूर की काश्त का रुझान बढ़ गया और काश्तकारों ने अच्छी पैदावार हासिल करना भी शुरू कर दी है। खिता पोटोहार अंगूर की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। अंगूर की वैरायटीज परलेट, थॉमसन, फ्लेम सीडलेस, अर्ली वाइट, किंग रूबी, सुल्तानिया, ये वैरायटीज इस इलाके में लगाकर इनसे अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। ख़ास तौर पे जो पोटोहार में पहले जो क्रॉप्स हो रही हैं, बिलफर्ज गंदम लोग लगा रहे हैं या मकई लगा रहे हैं, उनकी निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है, क्योंकि इसमें वन टाइम फार्मर की इन्वेस्टमेंट है। अब खिते पोटोहार में बड़े रकबे पर अंगूर की काश्त हो चुकी है और खिते पोटोहार की जरूरियात अब अपनी अंगूर की पैदावार से हासिल हो रही है। काश्तकार अंगूर की काश्त से सालाना 4 से 5 लाख फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। खिते पोटोहार में अंगूर की ऐसी अक़साम काबिल काश्त हैं जो मानसून से पहले पक कर तैयार हो जाती हैं, इसलिए खिते पोटोहार के काश्तकार ज्यादा से ज्यादा अंगूर काश्त करें और मुनाफा कमाएं। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, चकवाल। सयाती मकामात खुलने के बाद खेवड़ा साल्ट माइन में शहरियों का रश लग गया। माइन में नमक से बनी मस्जिद, चागी के पहाड़ इस सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेएलएम के खेवड़ा साल्ट माइन के अंदर दाखिल होने के लिए अंग्रेज दौर के वक्त से चलाई गई ट्रेन की सहूलत मौजूद है। नमक की कान में दाखिल होते ही एक अलग सा समा में असर आता है जो बाहर के मौसम से यकसर तब्दील है। गर्मी और सर्दी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड ही रहता है। खेवड़ा साल्ट माइन की 17 मंजिलें हैं। हिस्टोरिक लैंडमार्क है जी, और यहाँ पे बड़ी इंफॉर्मेटिव जगह है। हमें इस जगह को मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान का एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ पर मेरे ख्याल है सिकंदर के यहाँ पे घोड़े आए थे जिन्होंने आके इसको जगह को दरियाफ्त किया था। तो सिर्फ सिकंदर के घोड़ों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए हमें जगह, हमें इसको टेलीकास्ट करना चाहिए, हमें इसके बारे में किताबों में बताना चाहिए। बताया जाता है लेकिन उस तरह से नहीं बताया जाता। पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा जो है ना सप्लायर है नमक का इस वक्त, और बड़ा हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे जो है ना मुल्क कौम की ये एक हिस्टोरिक लैंड है। ताज़ा हवा के लिए माइन के अंदर 12 वेंटिलेशन मौजूद है। सियाह यहाँ आकर बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। कांडा नमक खेवड़ा दुनिया का 8वां अजूबा है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है और ये तकरीबन 110 किलोमीटर मुरब्बा पे मुहित है। इसमें वर्किंग जहाँ पे हो चुकी है। इसकी 17 स्टोरियाँ हैं। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये 7वीं स्टोरी पे, इसके नीचे 11 स्टोरियाँ हैं और इसमें देखने के लिए ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये शीश महल है और नमक की क्रिस्टल नमक की ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पे एक मीनार पाकिस्तान का मॉडल है। दुनिया की एक वाहिद मस्जिद वो यहाँ पे है। क्रिस्टल वैली है जो कि नेचुरली तौर पे जहाँ पे साल साल पानी खड़ा रहा है, तो बाद में जब पंप आउट किया गया तो वहाँ पे वो क्रिस्टल बने हैं, वो क्यूब्स सी बनी है। लेकिन वो बदकिस्मती से जो सयाहों ने उसमें ज़्यादातर वो तोड़ दिए, अब तो वहाँ पे जंगले वगैरह लग चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे सफोकेशन प्रॉब्लम हमें नहीं महसूस होती। इसके लिए 12 वेंटिलेशन पॉइंट हैं जो कि पहाड़ से हवा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो जिसके बायस यहाँ पे न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही किसी किस्म की माइन के अंदर को घुटन वगैरह महसूस होती है। सियाह इस मकाम को अजूबा तस्वर करते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी कान का नमक सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। हुकूमत जरा सी तवज्जो दे तो रेवेन्यू के साथ साथ सियाहत को भी फरोग मिल सकता है। इससे हासिल होने वाली आमदन जेहलम समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए लगाई जा सकती है। कैमरा मैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। डीजी खान के शहरियों ने
गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। बादाम से बनी लजीज सरदाई जिसे बच्चे बूढ़े सभी शौक से पीते हैं। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेराजी खान, शदीद गर्मी में लोगों का पसंदीदा मशरूब और गर्मी का तोड़ बादाम सरदाई है, जिसे बच्चे बड़े बूढ़े बड़े शौक से पीते हैं और बोतल में पैक करा के घर भी ले जाते हैं। गर्मी ना जोर से माशाल्लाह घोटा खास ये मशहूर बादाम सरदाई में खशखाश, चार मगज, इलायची, काली मिर्च से तैयार होती है। ये बादाम सरदाई 1 घंटे की मेहनत से तैयार होती है। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाए। ये गर्मी को भगाने का लाजवाब तोहफा है, क्योंकि खुदा ने बादाम में बहुत सी सलाहियतें रखी हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। मौसम गर्मा की सौगात खट्टा मीठा फालसा पक कर तैयार हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर मोहम्मद जरगर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी फालसे का नाम लेते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इसका नाम सोचते ही खट्टा मीठा जायका भी महसूस होने लगता है। गर्म मौसम में इस फल की अफाकियत भी अपनी ही है, जितना इसका जायका भी मजेदार होता है। आजकल मार्केट में भी इसकी मांग में इजाफा हो चुका है। मानावाला के मुख्तलिफ इलाकों में फालसा पक कर तैयार हो चुका है और मार्केट में भी आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस वाला। मानावाले में गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे मैं फालसा लेने आया हूँ, जो कि हम सबको पता है कि फालसे की जो बहुत ठंडा है और सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और गर्मियों में मेरे ख्याल में सबसे बढ़ के ये सौगात जो है वो फालसा ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मानावाला के शहरियों का कहना है कि फालसा एक ठंडा मीठा फल और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। रसीले, मीठे और जायकेदार पीलू पक कर तैयार हैं। जंगली दरख्त अंगूरी फलों से भर गए हैं। सिंध में पीलू पक गए। जिला खैरपुर के सहराई इलाके नारा में पीलू के पेड़ अंगूरी फलों से लद गए। खुश्क साली में जंगली रसीला फल इलाका मकीनों के लिए नेमत से कम नहीं। पीलू एक ऐसा खुरदरो और सख्त जान दरख्त है जो सहराई थर में शदीद खुश्क साली के बावजूद भी हरा रहता है। यही नहीं, खुश्क साली के मौसम में इसकी शाखें अंगूर नुमा फलों से लद जाती हैं। मैरून, गहरे सुर्ख और सफेद रस भरे इन फलों की साख्त मोती के दाने के बराबर और जायका मीठा है। सहरा की ये सौगात शौक से खाई जाती है। पीलू के इस रसीले फल को थरी अंगूर भी कहा जाता है, जिसे इलाका मकीन मार्केट में फरोख्त भी करते हैं। गर्मी में इजाफे के साथ ही मर्दान में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर हुसैन। गर्मी ने रंग दिखाया तो ठंडे ठंडे दीगर मशरूबात बाजारों में नजर आना शुरू हो गए, तो वहीं पर मर्दान के मुख्तलिफ मकामात पर गन्ने का रस फिरोख्त करने वालों ने भी अपने टीले लगा दिए। गन्ने के ताजा रस में लीमू और नमक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। यही वजह है कि हर कोई शहरी चाहे छोटा हो या बड़ा गन्ने के रस पीकर लुत्फ अंदोज होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक यरकान के मरीज के लिए गन्ने का रस काफी मुफीद है, इसलिए गर्मी में लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कैमरामैन सदीक अकबर के साथ मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। शुजाबाद में फलों के बादशाह आम की बहार आ गई। देखिए वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। मौसम गर्मा शुरू होते ही मुल्क भर में आम की काश्त शुरू हो जाती है। शुजाबाद को आम के बागात का बादशाह कहा जाता है। शुजाबाद में आम की काश्त दीगर शहरों की निस्बत ज्यादा की जाती है। 60 अक़साम से जायद किस्म के आम काश्त किए जाते हैं, जिनमें अनवर लटोर, सिंदरी, दुसेरी, माल्टा स्लोरी वगैरह शामिल हैं। शुजाबाद के शहरी आम को बहुत पसंद करने के साथ साथ खुद तो शौक से खाते हैं, अपने प्यारों को भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं और इसकी दरामदात बाहर ममालिक भी जारी रहती है। जबकि शहरियों का कहना था कि ये शुजाबाद के आम है, ये काफी लजीज और मीठे होते हैं। ये जो है ना काफ़ी अवाम इसको पसंद करती है। हम ये जो है ना बैर भी बेचते हैं, हमारे दोस्त और जो फ्रेंड हैं उनको भी हम बेचते हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दूसरी जानिब बाग मालकान ने अपने बयान में कहा कि बिजली के टैरिफ भी कम किए जाएं, खादों के रेट जो हैं ठीक है, यूरिया खाद पाकिस्तान में पैदा होती है और DAP बाहर से दरामद की जाती है, तो DAP के रेट जो है ना वो जूं बजूं हाई होते जा रहे हैं, तो इस पर भी खास तवज्जो दी जाए और इस पर हमें सब्सिडाइज की। हुकूमत अगर आम की दरामदात बाहर ममालिक में करने की इजाजत दे दे तो इससे हुकूमत को भी नफा होगा और किसान भी खुशहाल होगा। और इस बार आम की पैदावार काफी अच्छी हुई है और इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बहाल किए जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से अख्तियारात मुंतकिल न हुए। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट।
पाकपतन जिला काउंसिल चेयरमैन जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानब से बहाल कर दिया गया है, मगर पंजाब हुकूमत की जानब से अभी तक उनको इख्तियारात इस्तेमाल करने नहीं दिए जा रहे। इस सिलसिले में चेयरमैन साहब का कहना है, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि 25 माह की इस तवील जद्दोजहद के बाद 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को अल्लाह पाक ने बजरिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल कर दिया है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने आइन की बालादस्ती को कायम रखते हुए इनकी आइनी मुद्दत को प्रोटेक्ट किया है और हुक्म दिया है कि आप 3 मई 2019 की पोजीशन पे बहाल हैं, आप जाएं और अपने दफातर संभालें। चेयरमैन साहब का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट और हम अपनी पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ जो तारिक रही, सल टीवी पाकपतन। कबीरवाला की हदूद थाना अब्दुल हकीम में शोरकोट पंजाब पुलिस के एहलकार शहरी के घर में घुस आए, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और तोड़ फोड़ की। रिपोर्ट करेंगे राहिल रियाज। कबीरवाला की हदूद थाना अब्दुल हकीम में शोरकोट पंजाब पुलिस का एलिट फोर्स के हमरा शरीफ शहरी के घर गलत रेड, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। घर में तोड़फोड़ की, खवातीन बच्चों को हरासा करते रहे। अहले खाना के मुताबिक खवातीन पर बंदूकें तान ली गईं। खवातीन और बच्चों के साथ गालम गलोच करते रहे, यहाँ तक कि गोली मारने की धमकियां तक देते रहे। कुछ साबित न होने और अहले इलाका के पूछ गुछ करने पर गलती से आ गए का बयान देते हुए रफू चक्कर हो गए। लीड फोर्स ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, मैं बाहर सी काम ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜੀ पंजाब ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ शिकायत है कि ਮੈਨੂੰ ये हदाजाला किया जाए। थाना शोरकोट की पुलिस घर में घुसी और कमरों में घुस गई है, छानबीन शुरू कर दी, उठक पटक की है, पूछने पर भी नहीं बताया। ये तो पुलिस की गुंडागर्दी है। हमारी वजीर आला पंजाब से और वजीर आईजी पंजाब से दरखास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। अहले इलाका ने बताया कि बगैर तस्दीक के किसी शरीफ शहरी के घर, वो भी किसी दूसरे जिले में कार्रवाई करना शोरकोट जिला जंग पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शोरकोट पंजाब पुलिस और बगैर तस्दीक के वो भी दूसरे जिले में गलत जगह पर कार्रवाई करने पर वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को फौरन मुअत्तल किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज कबीरवाला। मियांवाली शायद पाकिस्तान का वो वाहिद जिला है जहां 60 किलोमीटर की हदूद के अंदर 2 बड़े बैराज वाक़ हैं। कालाबाग के मकाम पर जिना बैराज है तो दूसरा दरियाए सिंध पर चश्मा के मकाम पर चश्मा बैराज के नाम से कायम है। शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 40 साल तक फन मौसीकी के उफक पर हुक्मरानी की है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी सकोगे। मिला है ये एहसास हुआ मुझको, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।